Hello everyone, welcome to the selection classes. So in this video, I am going to take some of the questions from the series top 100 questions for the upcoming Z examination, and these questions can be challenging for you, these questions can be new for you, and if you follow the questions and you follow the series, definitely you'll be learning a lot of new things. And if you find any different method, the method जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यू कैन सेंड योर मेथड सो दैट आई कैन ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू राइट. सो चलिए शुरू करते हैं. So these questions can be helpful for your examination, top 100 question. So we have the first question. It goes like it. Ram bought a few mangoes and apples spending amount of rupees at most 2000. मतलब 2000 रुपए maximum खर्च कर सकता है राम. And we have mangoes, we have apple. It is given the unit price of mango is 4 rupees. This is cost, or I can say price. 4 rupees, and for each apple it is 6 rupees. Let the quantity of each mango be A and that of apple be B. So total अगर हम amount की बात करेंगे, that amount would be 4 times of A plus 6 times of B. It should be equals to less than 2000, right? तो ये आपके पास तरीका आ गया, बट कितने तरीके से आप इस परचेज को कर सकते हैं, राइट? So if I go for the minimum to minimum, because it is saying the Ram bought at least one fruit of each type, right? So A equals to 1, B equals to 1. So this is 4 into 1 plus 6 into 1. So that will give me 10 rupees. That will give me 10 rupees. If I take A equals to 2 and B equals to 1. So is it possible or not? So this is 4 into 2 plus 6 into 1. So again I can say this is 8 plus 6, 14, right? 8 plus 6, 14 rupees. Is it also possible, right? If A equals to 2 and B equals to 2, so this is 4 into 2 plus 6 into 2, so this is going to be 20, right? This is going to be 20. So one thing I can notice that I am getting every time even number. So whatever be the even number, these can be the outcomes. बट क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता? आई गॉट 10 ऑल्सो, आई गॉट 14 ऑल्सो, आई गॉट 20 ऑल्सो. सो अगर मैं ए को 1 लेता हूँ एंड बी को 2 लेता हूँ, सो आई विल बी हैविंग 4 into 1 plus 6 into 2, so that will give me 12 plus 4, 16 also, right? So I have 10 also, 14 also, 16 also, 18 भी आ जाएगा. बट ऐसा कोई नंबर आपको लग रहा है कि जो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा? दैट इफ आई टॉक अबाउट 12, सो कैन इट बी पॉसिबल दैट इज 4A plus 6B equals to 12? इज इट पॉसिबल और नॉट? ये हमको चेक करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 और 6 का जो एलसीएम है दैट इज 12. तो 12 के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, सो आई कैन से 2A plus 3B should be equals to 6. So यहाँ से 3B equals to 6 minus 2A, और यहाँ से B equals to 6 minus 2A upon 3. So B has to be integer also. So this is 2 minus 2 upon 3 of A. तो यहाँ पे A का ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसको इंटीजर बना सकता है? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ A कैन बी, अगर आप 0 लेंगे तो 0 तो ले ही नहीं सकते, बिकॉज एटलीस्ट एक फ्रूट खरीदा है. तो इफ आई पुट A equals to 3, so B will be 0. Means I cannot have 12 as a spending or the जो कि आप खर्चा करेंगे. फ्रॉम दैट आप बाकी सारे नंबर्स को कंसिडर कर सकते हैं एक्सेप्ट 12. तो आई कैन से कि अगर मैं मिनिमम टू मिनिमम 10 से लेके आई वांट टू गो अप टू 2000, सो कितने इवन नंबर्स बनेंगे? यहाँ पे नंबर्स कितने बनेंगे वो चेक कर लेते हैं. दैट इज लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, बिकॉज 2 का इंटरवल होगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, AP बन जाएगा, एंड दैट वुड बी प्लस 1. सो टोटल नंबर्स इवन नंबर कितने बनेंगे? दैट इज 990 अपॉन 2, 1990, राइट? 1990 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, सो दैट वुड बी 995 प्लस 1, सो 996. बट 996 में 12 भी इंक्लूड कर लिया आपने, बिकॉज 10 के बाद 12 आ रहा होगा, तो उसको एक्सक्लूड करना है. सो जो आंसर बनेगा इसमें, जो परचेजेस पॉसिबल है, 996 माइनस 1, 995. सो होपफुली यू गॉट द क्लू एंड ट्राई टू रीसॉल्व इट, सो दैट आपको पता चले कि सर ने ऐसा क्यों लिखा है. हाँ, ठीक है. चलिए वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंड इज अ 8 डिजिट नंबर
एंड एस एन डिनोट द सम ऑफ द डिजिट्स, और एन प्लस एस एन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एन प्लस एस ऑफ एन, it is given to us 1 and how many zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, so we have to find the tens digit of n, tens digit कितना होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। नाउ इफ आई गो फॉर द सॉल्यूशन, तो ये एक 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर है, राइट, तो 8 डिजिट का नंबर है, तो अगर मैं इसके मैक्सिमम पॉसिबल केस की बात करूं तो इट कैन बी 9998 टाइम्स, भाई मैक्स टू मैक्स तो इतना ही हो सकता है, बाकी तो इससे कम ही होगा, बट मैक्स टू मैक्स तो इतना ही हो सकता है। तो इफ आई कंसीडर दिस केस, राइट, इफ आई कंसीडर दिस केस, सो उस केस में एस एन कितना बनेगा, सो इसको माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, राइट, तो इस नंबर को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे एस एन कितना आ जाएगा, तो एस एन उस केस में आ जाएगा, दैट इज एस एन वुड बी 9 into 8 72, so sum of the digits of that number would be 72, right, so in case n because s can be 72 but s cannot be 72 maximum, but इससे कम होगा ना भाई, कम से कम तो 72 नहीं होगा ना, मैक्स टू मैक्स 72 हो सकता है, बट मिनिमम तो मिनिमम अगर ये 1 1 का फॉर्म हो गया तो फिर बन सकता है, या फिर ये नंबर 100 समथिंग हो गया, बट 100 तो नहीं होगा, उस केस में इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसा नंबर होगा, तो मैक्सिमम तो इतना जा सकता है, आई हैव द लाइक लॉजिक ऑल्सो, राइट, बट अभी इसमें कैसे इसको प्रोग्रेस करेंगे, राइट, सो इफ आई कंसीडर दिस एस एन इज लेस देन इक्वल्स टू 72, सो एस एन इज less than equals to 72. So if I consider this Sn from here, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 minus का n less than equals to 72, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी, n should be greater than equals to, आप इसको उधर लेके जाएंगे, राइट, तो दैट वुड बी 9999 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 72 माइनस करेंगे, सो दैट वुड बी 28 2 3 4 5 6 6, ठीक है। सो n की वैल्यू कम से कम तो इतना हो सकता है या फिर इससे कम हो सकता है, कम से कम इतना होगा, बट ये 28 कोई जरूरी नहीं है कि 28 ही होगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैक्सिमम का केस है, बट आपको ये तो समझ में आता है कि n जो भी होगा, इसका मतलब n इज द फॉर्म ऑफ 3 2 4 5 6, एंड यहाँ पे कुछ भी नंबर p और q आ सकता है, लास्ट की 2 डिजिट कुछ भी हो सकती है, एंड इन दैट मैक्सिमम केस वो 28 होगा, बट इस केस में 20 मतलब p q कुछ भी हो सकता है, राइट, चलिए, इट मीन्स कि अगर मैं इसमें बात करता हूं, तो अगर आपने n को ये दिया है, दैट इज 9 टाइम्स 6, सॉरी 6 टाइम्स 9 एंड पी क्यू, तो सम ऑफ n कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 9 into 6 प्लस p प्लस q, so that will give me 999999 pq plus 54 plus p plus q, right, and it is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, यहाँ से समझ में आता है। तो अभी हम p और q के बारे में बात करेंगे, तो मैं क्या इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 99999900 प्लस 10p प्लस q, बिकॉज मुझे p और q के बारे में बात करनी है, प्लस 54 प्लस p प्लस q शुड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 3 4 5 6 7 8, राइट, तो यहाँ से अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, दैट वुड बी 11p प्लस 2q प्लस 54, ये नंबर कितना होगा माइनस करके, राइट, आप इसको माइनस करके देख सकते हैं, तो अगर मैं इसमें से 1 2 3 4 5 6 0 0, तो 0 0 दैट वुड बी 1 एंड ये बाकी 0 0 हो जाए, यहाँ पे 100 आ जाएगा,
तो 11p प्लस 2q इक्वल्स टू 46। तो p और q नाउ इंटीजर्स हैं, हाँ डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है, राइट। सो इफ आई गो फॉर द सोल्यूशन लाइक which are what can be the possible values, so 11p plus 2q equals to 46। सो बेयर मिनिमम वैल्यू अगर मैं p की बात करूंगा, इफ आई लाइक अगर मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूँ फॉर यू, दिस इज 2q इक्वल्स टू 46 माइनस 11p, सो q शुड बी इक्वल्स टू 23 माइनस 11 अपॉन 2p। तो p क्या नंबर हो सकता है? इफ यू वांट टू टेक p एज 2, अगर p 2 होगा, right, if you want to take p equals to 2, then q would be equals to 23 minus 11, that is 12, but this cannot be the case. Why so? Because q जो है एक डिजिट है, it can be 0 और max to max 9, but 12 तो नहीं हो सकता, it means it is not the possible case. So what can be the possible case, right? तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो q equals to 23 minus 11 upon 2 p, ना p को अगर मैं 4 लेना चाहता हूँ, सो q इक्वल्स टू 23 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 4, सो q कैन बी इक्वल्स टू 23 माइनस 22, दैट इज q कैन बी इक्वल्स टू 1 ऑल्सो। 2 2 4 हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसके ज़्यादा वैल्यू रखेंगे तो q नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो n बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 4 और 1, राइट। तो q की वैल्यू 1, p की वैल्यू 4, एंड यहाँ पे अगर मैं इसका Sn निकालता हूँ, दैट वुड बी 54 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 59। तो 59 में अगर मैं ये जोड़ूंगा, आई विल बी गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 5 6 7 8। सो होपफुली यू गॉट द लॉजिक। ठीक है, थोड़ा सा ये मेथड था, नंबर सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन था, एंड प्लीज एक बार इसको वापस से देखना सो दैट यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, interesting question. 5 positive integer have mean, median, and mode equals to 10. So we have mean, we have mode, and we have median. All are 10. All are 10. ठीक है। तो मीडियन आपको पता है मिड वैल्यू होती है। देयर आर 5 नंबर्स, सो मीडियन हैज टू बी द मिड पॉइंट। सो 2 इसके लेफ्ट में नंबर होंगे, 2 इसके राइट में होंगे। होपफुली यू अंडरस्टूड। ना मोड इज आल्सो 10। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 2 बार तो 10 आएगा, राइट। ना मोड, अब यहाँ पे यूनी मोड की बात कर रहा होगा, क्योंकि मोर देन 2 का केस नहीं बनेगा, आप चाहे तो देख लेना। एंड इफ देयर रेंज इज आल्सो इक्वल्स टू 15 एंड मोड इज यूनिक, हाँ लिख दिया इसने लिख दिया मोड यूनिक है। इसका मतलब यूनिक मोड का मतलब क्या है कि जो है मोड जो है वो 10 ही होगा, राइट। तो 10, तो 10 या तो इसके बगल में लेफ्ट में आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, यही मतलब है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन द लीस्ट ऑफ द 5 इंटीजर, जो सबसे छोटा नंबर है वो कितना हो सकता है। तो इसने रेंज की बात करी है। हाँ, इफ यू नो अबाउट द रेंज, तो रेंज का कंसेप्ट होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस क्या होना चाहिए। रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब होता है दैट इज मैक्स माइनस मिन। ये 15 हो सकता है, बिकॉज रेंज इज गिवन टू अस 15। तो अगर मैं इस नंबर को x लेता हूं, सो इस नंबर को मुझे x प्लस 15 लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर है p ले लेते हैं, और इन दैट केस दिस वुड बी x, दिस वुड बी x प्लस 15। ये p यहाँ पे आ सकता है, यही पॉसिबल केस है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबल केस नहीं है, राइट। और मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का कोशिश की है, राइट। नाउ इनका मीन 10 है, सो अगर मीन इनका 10 है तो इनका सम कितना आएगा? x प्लस 10 प्लस 10 plus t plus x plus 15, that should be equals to divide by 5 should be equals to 10। तो यहाँ से 2x plus 20 plus 15 35 plus p equals to 50। तो यहाँ से 2x plus p की वैल्यू 15 आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे हमको सेटिस्फाई करना है कि x को मिनिमम रखना है, x इज द मिनिमम वैल्यू और p उससे थोड़ा बड़ा होगा, बट हो सकता है 10 और x के बीच में आए, या फिर 10 और x प्लस 15 के बीच में p की वैल्यू को लाई करना है। तो मैं यहाँ से अगर p के बारे में बात करता हूँ तो दैट वुड बी 15 माइनस 2x। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू और p की वैल्यू की बात करता हूँ, x क्या 1 हो सकता है,
तो अगर x1 है तो ये 13 हो सकता है, पॉसिबल है 13 बीच में आ सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। x की मिनिमम वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 11 आ सकती है, तो 11 भी इसको सेटिस्फाई कर रही है। 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 9 भी सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। यहाँ पे 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 7 भी हो सकता है भाई, 10 से तो छोटा ही है, ठीक है। और x की वैल्यू 4 आ गई तो यहाँ पे 4 आएगी, तो ये 7। अगर मैं x की वैल्यू को 5 रखता हूँ तो p की वैल्यू 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये आपके पास दो वैल्यूज 5 हो जाएंगी तो ये फिर मोड आपका यूनिक नहीं बन पाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू को 6 रखता हूँ तो दैट विल गिव मी भाई 5 15 6 टू 12 3, ठीक है। तो 6 टू 12 3 बचेगा, तो इसका मतलब तो पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पे आप 6 ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 ले नहीं सकते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर दिया मीडियन निकालने के लिए, ठीक है। मीडियन के लिए ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आई कैन से कितने मिनिमम वैल्यूज पॉसिबल हैं, सो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज। So answer of this question is 4, because it is asking that how many possible values can the least of the 5 integer। तो जो लीस्ट वैल्यू है, जो लीस्ट नंबर है, वो 4 वैल्यूज ले सकता है, 1 2 3 4। सो होपफुली ये क्वेश्चन भी अच्छा था, आपको समझ में आया होगा। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई टू रीड इट एंड सॉल्व इट। A total of 768 balls are arranged in a pile in the 9 layers. The nth layer from the top, where n की वैल्यू आई थिंक ये इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, मैक्स टू मैक्स 9 है, n की जो मैक्सिमम वैल्यू है 9 है, और ये आई थिंक 3 की बात कर रहा होगा। as many as balls as the sum of the number of balls in the layers above it, find the number of balls in the 6th and the 7th layer। ठीक है, ये कहना चाहता है कि 9 लेयर्स में कुछ बॉल्स रखी हैं, ठीक है। सो देयर आर बॉल्स विच आर प्लेस्ड इन 9 लेयर्स। आई डोंट नो कितने लेयर में कितनी बॉल्स हैं, बट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ ले रखा है इसने, ठीक है। तो ये 9 लेयर्स बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है। बट इसने ये बात जरूर बोली है कि द nth लेयर फ्रॉम द टॉप, वेयर n की वैल्यू आई थिंक 3 या उससे ज्यादा, हैज 9 मैक्सिमम है। The many balls as the sum of the number of the balls in the layer above it, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल थर्ड लेयर की बात करता हूँ, तो थर्ड लेयर में उतनी बॉल होंगी जितना इसके ऊपर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, तो फिर इसको भी यहाँ पे मतलब 3 बॉल यहाँ पे हैज द सम ऑफ द, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉल होनी पड़ेंगी, ठीक है। यही मतलब है इस बात का कि जितनी बॉल आप किसी पर्टिकुलर लेवल में लेयर में देख रहे हैं, उससे ऊपर उतनी बॉल मैंडेटरी है। ये बोलता है कि आपके पास सम निकालना है 6th और 7th लेयर में, ठीक है। टोटल 768 बॉल है, ठीक है। टोटल 768 बॉल है। तो अगर मैं 6 लेयर की बात करता हूँ, 6 लेयर्स, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ये टॉप से चल रहा है, और 7th लेयर, फिर 8th लेयर एंड फिर 9th, ठीक है। ये सबसे बॉटम वाला बनेगा, ये बॉटम पे बनेगा। तो एक बात सोचने वाली बात है कि जो भी ये सोचने वाली बात है कि जो भी नंबर ऑफ बॉल्स किसी भी लेयर के ऊपर है, उतनी ही बॉल उस लेयर पर्टिकुलर लेयर में आएगी, राइट। तो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट इससे ऊपर के जो लेयर्स हैं, इसमें हम ये मान लेते हैं इस पे आपके पास के बॉल्स हैं। मैंने अज्यूम कर लिया कि टोटल इसमें के बॉल्स है, वाट एवर इट इज, बट के तो होंगी। इसका मतलब यहाँ पे जो बॉल्स होंगी वो के बॉल्स होना मैंडेटरी है। इसमें फिर 2k होगा, भाई इसमें 2k होगा, अब सोच के देखो ना, इसमें 2k होगा क्योंकि k प्लस के मिला के 2k। फिर इसमें कितना होगा, 4k होगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 8k हो जाएगा, 4 2 6 7 8, ठीक है। तो 8k हो गया, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल वुड बी 8 + 4 12 14 15 16। तो 16k की वैल्यू क्वेश्चन में 768 दे रखा है। तो 16 4 जा 64 और बचेगा 12, 16 8 जा, के की वैल्यू 48 आ गई। इसका मतलब इससे पहले 48 बॉल है, फिर इसमें 48 है, फिर इसमें 2k है, ठीक है। तो 6th एंड 7th लेयर की बात कर रहा था, तो k + 2k, तो 3k हो गया, एंड k की वैल्यू आपके पास 48 आ गई। तो 48 × 3 144। तो वी हैव द ऑप्शन
144 ऑप्शन नंबर बी माइट बी पॉसिबल, कहीं कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ होगा तो यही आंसर है, बाकी आपको लॉजिक या कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो 2k 4 4 8 एंड 8 16 12 14 15 16, ठीक है। तो 16 16 पंचासी 16 चौके 64 16 8 128, ठीक है। के की वैल्यू 48 आई है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंस सकते हैं बट चांसेस कम है आपके फंसने के अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉफिट इज 1/3 ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है वो 1/3 है डिस्काउंट का। इट मीन्स प्रॉफिट और डिस्काउंट की अगर मैं बात करता हूँ 1:3 में है, तो इसको मैं 3k और 1k को अज्यूम कर लेता हूँ रेशियो है। अब डिस्काउंट का परसेंटेज दे रखा है 37.5%, एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर दैट इट इज 3/8 एंड 8 इज द मार्क प्राइस, राइट, मार्क प्राइस, एंड डिस्काउंट यहाँ पे 3 यूनिट है। तो अगर मैं एमपी की बात करता हूँ, एसपी की बात करता हूँ, सीपी की बात करता हूँ, आई हैव टेकन 8 8 का मल्टीपल 8 के ले लिया, क्योंकि डिस्काउंट भी मेरा 3 के मल्टीपल में है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब जो मैं के जो मेरा आई कैन से जो वेरिएबल है उसमें काम कर सकता हूँ। सो इफ दिस इज 8k, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट देना है 3k का, you will be reaching 5k. So selling price is of 5k. Now you want to earn the profit of 1k also. So for that, CP has to be 4k so that you can have the profit of 1k. So hopefully you got the logic कि हमने रेशियो पे ही खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है, सो प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट, वी आर अर्निंग 1k ओवर 4k, सो दैट इज नथिंग बट 25%. सो दैट वाज आई कैन से इजी था बट लॉजिक तो था इसमें, राइट। Next question we have. There is a natural number n. When divided by 10, leave a remainder r and quotient q, right? So there is a number n. When divided by 10, we have the quotient and plus remainder. तो अगर आपने थोड़ा सा जानते हैं यूक्लिड को, तो दैट नंबर वुड बी 10q प्लस सम रिमाइंडर r। तो इसको कैपिटल Q ले लेते हैं। सो ये नंबर कुछ इस तरह से है, राइट। 10 का मल्टीपल है प्लस रिमाइंडर है। Now it is saying n is also equal to the sum of the product of qr and sum, that is sum of the product qr and sum qr। इसका मतलब ये जो नंबर है qr प्लस q प्लस r के भी इक्वल है, तो बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, r का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पर, इसका मतलब 10q इक्वल्स टू qr प्लस q, तो दैट वुड बी 9q इक्वल्स टू qr, और आई कैन से 9q माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 0। सो q कॉमन लेंगे, 9 माइनस r इक्वल्स टू 0। तो q कैन बी 0 एंड r कैन बी 9। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो क्वेश्चन 0 होगा या तो रिमाइंडर 9 होगा, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके पास इफ q इज 0, तो नंबर तो एक निकल के आ जाएगा, दैट इज 10 इंटू 0 प्लस 9, जो कि 9 होगा। बट यहाँ पे एक और बात बोल रखा है, n इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 9 and less than 10,000, तो n has to be the multiple of 9। I got first number 9 multiple है, but what about the next number, ये थोड़ा important है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को n से डिवाइड करता हूँ, राइट, एंड आई एम गेटिंग द रिमाइंडर एज 9, ये तभी पॉसिबल है, ये जो नंबर है दैट इज, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो 9 को तो पहले हटा ही देंगे, क्योंकि 9 रिमाइंडर आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 9 मुझे हटाना है, 9 के बाद अगला नंबर रिमाइंडर जो 9 दे सकता हूँ 19 दे सकता है। 19 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, सो दैट वुड बी 10 इंटू 1 प्लस 9, रिमाइंडर 9 आ गया, क्वेश्चन कुछ भी हो। बट ये जो नंबर 19 है, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है दैट वी वांट नंबर n हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9, राइट। अभी क्या करेंगे, तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा। बट अभी मेरे को जो ये पहेली दे रखी है, इस पहेली के बारे में सोचना है कि कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो नंबर है इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ, फॉर एग्जांपल 9 आल्सो, इट हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ 9 आल्सो, राइट। ओके, सो गॉट इट। तो यहाँ पे अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा, सो दैट हैज टू बी 10 टाइम्स अ क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर r। तो रिमाइंडर तो 9 आपको फिक्स करना है, राइट, रिमाइंडर तो 9 आपको फिक्स करना, और ये 9m का भी मल्टीपल कुछ ना कुछ होने चाहिए। -9 इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ q।
राइट। तो यहाँ से जो क्यू होगा वो 9m माइनस 9/10 के इक्वलेंट हो सकता है। नाउ क्वेश्चन जो होता है वो एक इंटीजर होता है। हाँ, क्वेश्चन जो होता है वो इंटीजर होता है, ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रब करने का कोशिश करता हूँ सो दैट आई कैन हैव द स्पेस, क्योंकि ये क्वेश्चन बोलता है कि आपसे 9 का भी मल्टीपल आपको चाहिए, राइट। तो अगर मैं इस 9 के मल्टीपल की बात करता हूँ तो क्वेश्चन तो मुझे यहाँ से मिलेगा, बट क्वेश्चन यहाँ पे m जो होगा, m भी एक इंटीजर होगा। तो इस तरह से कितने पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमको यहाँ पे इस वैल्यू को देंगे, राइट। तो आई कैन से, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो क्वेश्चन अपने आप में एक इंटीजर है, क्वेश्चन इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट। सो अगर मैं क्वेश्चन को 1 अज्यूम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी 10 + 1, 10 इंटू 1 + 9, सो नंबर होगा 19, बट इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ, इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 9। तो ऐसा कौन सा पहला ऐसा नंबर हो जो कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए? तो आई कैन से कि ये तभी पॉसिबल होगा बिकॉज 9 तो 9 का मल्टीपल है, बट क्वेश्चन जब 9 का मल्टीपल होगा, बिकॉज इट इज टेक n इक्वल्स टू 10 टाइम्स, आई हैव टेकन द क्वेश्चन 9m + 9। हाँ, ठीक है, वो हमने फालतू में 10 से डिवाइड कर दिया। नाउ इट इज क्लियर कि ये जो नंबर है वो 10 का 10 टाइम्स बोलता है ना, लीव्स द रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 10, लीव द रिमाइंडर ऑन क्वेश्चन क्यू। ठीक है, तो जो नंबर होगा वो 10 टाइम्स क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होगा। तो इट हैज़ टू बी लेस देन 10,000, ये है कहानी इसकी। सो 10,000 से कम करना है मुझे, तो यहाँ से 90m शुड बी लेस देन 9991। यहाँ से m की वैल्यू जो पॉसिबल होगी 9991 डिवाइड बाई 990। ठीक है, तो 9 से हो जाएगा 1110 पॉइंट, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 99911 हो जाएगा 0.0, आपने लगा दिया 0 लगा के, फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वुड बी 1, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 and again 9 9 1, so I'll be using 1 also, right, so I can use 0, so 0.9 जा 9, ठीक है, ये बन जाएगा। सो अभी आपके पास 111 0.1 डिवाइड बाई 10, so m हैज़ टू बी लेस देन 111.01। तो m एक इंटीजर है, आपको पता है, तो इसका मतलब 111, तो m कैन टेक 111 वैल्यूज, राइट। 111 वैल्यूज का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो 111 हो सकते हैं, 1 से लेके, राइट। तो यहाँ पे 111 नंबर्स प्लस एक नंबर आपके पास 9 भी अवेलेबल है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? दैट इज 111 + 1 112। तो प्लीज़ एक बार इसको ट्राई करना खुद से, बिकॉज आप देखना, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पे गड़बड़ कर गए हो, बट इसको तो आपको हटा ही देना, क्योंकि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है। मैंने क्या यूज़ किया है कि जो n है वो 10 का भी मल्टीपल है और वो 9 का भी मल्टीपल है साइमल्टेनियसली। तो जो नंबर आप लिखते हैं, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 10 इंटू 9m यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए प्लस रिमाइंडर 9। ये जो नंबर है 10,000 से लेस करना है, इसको करेंगे तो आपको m की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एंड e is a expression that is e equals to twice of x square plus thrice of y square minus 6x plus 9y plus 15। लीस्ट वैल्यू आपसे e के बारे में पूछा है, लीस्ट वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ से x की टर्म्स को कलेक्ट करता हूँ एक साथ, एंड आई एम राइटिंग द y टर्म्स टुगेदर, so we have something like that, and from here I can take 2 common, so that I have x square minus 3x, and if you know the completing the square method, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे एंड वट एवर बी द रिजल्ट उसका स्क्वायर आप प्लस माइनस करेंगे। होपफुली यू नो दिस मेथड, बट दिस इज ओनली अप्लीकेबल अगर आपके पास x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, राइट। एंड गोइंग बाय द सेम लॉजिक, सो 3 विल बी कॉमन, सो आई विल बी हैविंग y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3/2 होल स्क्वायर minus 3/2 whole square and plus 15 we have. So this will make, these three terms will make a whole square of x minus 3/2 whole square,
and this will be minus 9 upon 4, right? Similarly थ्राइस ऑफ y प्लस, यहाँ पे 3 मतलब प्लस का आएगा होल स्क्वायर y से, बिकॉज यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है y का दैट इज +3, so that would be 3/2 का होल स्क्वायर अगेन minus 9/4 plus 15, right? So if I take a whole square as together, so e would be equals to twice of x minus 3/2 whole square plus thrice of y plus 3/2 whole square. Now this is minus 18 upon 4 and this is minus का 27 upon 4 and plus 15, right? ये आपके पास कांस्टेंट नंबर बचा है. So I can say this is a square and this is something b square. So I can say this is minus 45 upon 4 plus 15. So that will give me 4 LCM minus 45 plus 60. That is 15 upon 4. तो जो आपके पास e का फाइनल जो एक्सप्रेशन है e इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and plus 15/4. Now you know that when two squares are added they can take the minimum value 0. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इनकी 0 आ सकती है. सो अगर ये 0 हो जाएगा तो 15/4 इज अ कांस्टेंट जो कि कहीं नहीं जाने वाला है. तो दिस इज विल बी द केस जब ये इसकी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा. तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 15/4. सो होपफुली यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट दैट इज व्हेनेवर यू सी एक स्क्वायर है, एक कोफिशिएंट लीनियर है, तो आप इसको कोशिश करिए, और मैक्सिमम मिनिमा की बात करता है, ट्राई टू मेक द कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर. वी हैव अनदर क्वेश्चन and it is saying x, y, z are the three natural numbers such that 2x plus 3y plus 4z equals to 100. And now 2x square plus 5y square plus 8z square, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और मैक्सिमम की बात करते हैं. तो मैक्सिमम के लिए नंबर बड़े से बड़े होने चाहिए, बट कितने बड़े हो सकते हैं ये तो नहीं पता हमको, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे x और y और z की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूँ, हाँ, x y z मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, आई एम टेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू, क्या क्या ये अचीव कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है. ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है, इसका मतलब y और z 0 नहीं हो सकते और नेगेटिव नहीं हो सकते, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए. तो अगर मैं इसको 50 करूंगा तो ये तो फिर 0 हो जाएगा, तो 50 तो नहीं होगा. क्या ये 49 हो सकता है? 98 ये भी नहीं हो पाएगा भाई. 3 का मल्टीपल कम से कम होना चाहिए, 4 का मल्टीपल, तो इनको मिनिमम 1 1 दे दो. तो अगर आप इनको 1 1 दे के खुश कर दोगे तो ये बचेगा, दैट इज 4 + 3 7. तो ये 2 का मल्टीपल नहीं आएगा. 7 इज नॉट, मतलब जो बचेगा 93 भाई 100 होना चाहिए. 93 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2. इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है. इसका मतलब हम कुछ और वैल्यूज ट्राई मारेंगे यहाँ पे, दैट इज 3y 8. तो इसको मैक्सिमम करने के लिए बड़े वाले नंबर को छोटे से छोटा होना चाहिए. तो यहाँ पे इसको हम 2 रखते हैं. 3 × 2 ये हो जाएगा 4 × 1, ये बचेगा 6 + 4 10. तो ये 90 बचेगा. इसका मतलब 2x शुड बी 90, सो दैट कंबाइन इनका सम 100 हो जाएगा. तो x की वैल्यू यहाँ पे 45 आ सकती है. तो ये 45 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. अगर आपको लग रहा है कि सर इस पे 3y को अगर मैं 1 रखता हूँ और 4z को आप 2 रखना चाहते हैं, सो अगेन दैट वुड बी ए ऑड नंबर. दैट्स वाई यहाँ पे ऑड नंबर बचेगा. तो ऑड नंबर कैन नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 2, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसा किया, ठीक है. तो ये आपके पास x की वैल्यू पता चली, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम y को मैक्स करना चाहते हैं, पहले हमने x को मैक्स किया, y के बारे में क्या ख्याल है. सो 2x + 3y + 4z = 100. तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स y जो है 3 का मल्टीपल 99 हो सकता है, बट 99 होने के लिए इनको 1 होना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है. तो भाई 30 तो नहीं हो सकता, मतलब 33 तो नहीं हो सकता, y 32. अगर मैं y को 32 लेता हूँ तो ये 96 बनेगा, जो कि 4 बनेगा. तो 4 में
ये हो ही नहीं सकता, आपको 4 बनाना तो z की वैल्यू कम से कम तो 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। आप एक काम करते हैं ना, इसमें 2 और मतलब z की और x की मिनिमम वैल्यू रख लेते हैं, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इंटू 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 3y इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से 3y की वैल्यू 94। तो यहाँ पे y इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं बनेगा। तो इसको इंटीजर बनाने के लिए क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे आप चाहते हैं कि 3 का मल्टीपल हो, तो एक काम करते हैं, अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ तो 4 प्लस ये 2 हो जाएगा, 4 प्लस 4 8, तो बचेगा 92, तब भी नहीं बनेगा। इसको 2 ले लेते हैं, 2 प्लस 4 टू जा 8 प्लस 3y इक्वल्स टू 100, यहाँ से बन जाएगी कहानी। तो वहाँ से y की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो अगर y 30 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ x वाज 1, तो x वाज 1 एंड z वाज 2, राइट भाई। 4 टू 8 प्लस 1। क्या कोई और तरीका है इसको सेटिस्फाई करने का, राइट। y को आपने 30 लिख लिया, सो ये हो जाएगा दैट इज 2x प्लस 90 प्लस 4z इक्वल्स टू 100। यहाँ से 2x प्लस 4z इक्वल्स टू 10, यहाँ से x प्लस 2z इक्वल्स टू 5। तो क्या क्या पॉसिबल केस यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि x की वैल्यू 1 रख दी, z की वैल्यू 2 आ गई। क्या x की वैल्यू 2 रख सकते हैं क्या, तो 2 प्लस हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू 3 रख सकते हैं, तो 3 प्लस 2 इंटू 1, ये भी बन जाएगा, तब भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, 30 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और नहीं करेगा। लास्ट भी आप 4z वाले को देखते हैं, तो 2x प्लस 3y प्लस 4z, तो ये मैक्स टू मैक्स भाई 25 वैल्यू ले सकता है, लेकिन 25 का मतलब 25 इंटू 4 100, z की वैल्यू मैक्सिमम 25 हो जाएगी, तो ये सब जीरो हो जाएगा, बट नेचुरल नंबर बनाने हैं। तो फिर इसका मतलब आपके पास 96 को अगर मैं लिखता हूँ, क्योंकि 4 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 96 के हिसाब से इसमें 4 बचेगा, बट 4 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा, तो फिर 92 पे काम कर सकते हैं, 4 इंटू 23 92, 93 का मतलब 7 बचा है। क्या 7 को आप लिख सकते हैं, कैन आई राइट 7, 2x प्लस 3y 7 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। 2x प्लस 3y कैन बी 7 और नॉट, पॉसिबल है, राइट। अगर मैं x की वैल्यू को 2 डाल देता हूँ, y की वैल्यू को 1 डाल देते हैं, 7 बन जाएगा। बाकी और कोई तरीका बनेगा नहीं, आप इसको देख लीजिए। इसका मतलब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये 23 है। तो ये आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको इसको मैक्सिमाइज करना, तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं, जो आंसर मुझे मैक्सिमम देगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। और पहले वाले केस में ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे मैं e की वैल्यू लिखता हूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ 45 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8, 1 का स्क्वायर इंटू 8, सो दैट वुड बी 2025 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4050 प्लस ये हो जाएगा 2 टू जा 4 5 जा 20, 20 प्लस 8 फिर 4078 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसको देखेंगे, सो ई का वैल्यू आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 30 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 का स्क्वायर, सो दिस इज 900 इंटू 5 4500 प्लस 2 टू 4 4 8 जा 32 प्लस 2, तो 34 4534, तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ गया। इस पे क्या ख्याल है, तो इस पे देख लेते हैं। ई इक्वल्स टू, सो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 30 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 900 इंटू 5 4500 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 4526, तो ये थोड़ा कम हो गया। एंड लास्ट पॉसिबल यहाँ पे केस है, तो ई इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 2 है, प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 23 का स्क्वायर, सो 23 का स्क्वायर आपको पता 529 होता है, सो 529 इंटू 8 8 9 72 8 2 जा 16 23 8 5 जा 40 42,
तो 4 2 3 2 प्लस दिस इज 5 एंड दिस इज 2 2 4 8, तो 4 2 5 5, तो सबसे बड़ा वैल्यू यही नंबर आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज गिवन द मैक्सिमम वैल्यू, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ई शुड बी, ये अच्छा क्वेश्चन था। So maximum value of the E should be equals to 4534. If the calculation error is not there, so this would be the answer. बाकी आप चेक कर लेना, I told you the तरीका। तो I think 10 क्वेश्चन हो चुके हैं and in the next video I'll be covering next 10 questions. So if you want to connect with the selection classes, then you can join us. So see you in the next video. Bye, take care.